where k is equal to 5.4 into 10 to the power of minus 14 per second. Yes. So how to calculate this one? Simple सा logic है, logic कुछ नहीं है यहाँ पे, सुनिए. T2/3 is equal to, formula is same, fixed formula, that is 2.303 by k into log of a by a minus x ना. यहाँ पे x कौन होता है? 2/3 होता है, यहाँ 2/3 a बनेगा. यस. देन T2/3 कैलकुलेशन आपको ही करना है, एंड तक मैंने बताता. 2.303 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू 5.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14 इंटू लॉग ऑफ a बाई a माइनस 2/3 है. 2/3 में से अब ये थोड़ा साइड को रखेंगे, ये पार्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करो. इनटू log of a by a minus 2/3a. a को कॉमन निकालो यहाँ से, log of a by a 1 minus 2/3 बनेगा. दोनों के पास a कॉमन है ना, a कैंसिल हो जाएगा. अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको आंसर बन. यार अच्छे अच्छे क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से, मैं बोल रहा ना, जस्ट थोड़ा सा ध्यान करके प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे. नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूँ, उसके बाद कल का इवनिंग का क्लास भी और एक बार रिवाइज करता हूँ. डोंट वरी. यस. अरे वो एक बोलना है शायद. वेट कौन सा यार? हाँ वेट करो बेटा, एक सेकेंड. हाँ, कल हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिलेटेड में बात किए थे बेटा. आफ्टर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ये रेट ऑफ रिएक्शन? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज द effect of temperature on rate of reaction? Actually, as the temperature increases, collisions between the molecules increases. As the collisions increases, rate of the reaction also increases. Simply बताना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल N2O5 का मैं डिकम्पोजिशन करना चाह रहा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. N2O5 का डिकम्पोजिशन करना है. 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको डिकम्पोज करूंगा तो 12 मिनट्स टाइम लगेगा. इफ एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो इट टेक्स 5 आवर्स टाइम. If the decomposition of N2O5 is carried out at 0 degree Celsius, it takes 10 days time for a decomposition. That's why simply we are saying, as the temperature increases, rate of the reaction also increases. Temperature gradually decrease किए, 12 मिनट से 5 आवर्स को आया, 5 आवर्स से 10 डेज को आ गया. Yes. There is one more point is there which is important for a competitive exam. कोई भी एक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन गिव्स राइज टू प्रोडक्ट्स. इफ देयर इज कोई एक रिएक्शन है, इफ इट इज गोइंग ऑन एट T डिग्री सेल्सियस और T केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है एंड इट्स रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन, इफ रेट ऑफ द रिएक्शन इज R,
If I am increasing the temperature by 10 degrees Celsius, means T से इसका टेम्परेचर T plus 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया मैंने. कितना टेम्परेचर बढ़ाया मैंने? How much temperature is increased? Only 10 degree temperature is increased. Then the rate of this reaction, or it becomes a double. This is the standard statement. Standard statement. It is a standard statement. क्या है standard statement? For every 10 degree rise or fall in temperature, चलो rise की बात करेंगे. For every 10 degree rise of temperature, rate of the reaction becomes a double. Rate of the reaction becomes a double. For every 10 degree rise of temperature, rate of the reaction becomes a double. To explain this rate of the reaction with temperature related, there is a one equation is introduced that is called Arrhenius equation. According to Arrhenius equation, easy rahega K is equal to A into e to the power of minus EA by RT. This is the formula. K is called rate constant. A is called Arrhenius factor, which is constant, और pre-exponential factor भी बोला जाएगा. EA is activation energy. R is a universal gas constant. Generally, activation energy is taken in joules per mole. And R is a universal gas constant. T is a temperature. Yes. Yes. ये values को दिया जाएगा. Based on that, we can calculate the K or whatever it may be. हाँ, this is the Arrhenius equation. Arrhenius equation वो होगा. अरे एक बात सुनिए, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, मीन्स हाइड्रोजन when it reacts with iodine it gives rise to 2 moles of hydrogen iodide. इसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे. How to represent this one? Listen. ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता? Graphically, actually, this is the potential energy and this is reaction coordinate, means reaction, how reaction is going on. Reaction coordinate. Yes. Generally, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा रिएक्टेंट्स. For example, this is the potential energy of the reactants and this reaction is going on. मैं बोलता सुनिए. Here the reactants hydrogen and iodine both react with each other. They are forming 2 moles of hydrogen iodide here. हाँ, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, क्योंकि ग्राफिकल में वैल्यूज दिया गया तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं देता जनरली नीट को लिए. The energy difference between reactants and products is called delta H, change in enthalpy. ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, जो पीक हाईएस्ट बता रहा हूं ऊपर वो वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. The energy difference between this reactants and
द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता बेटा, नोट्स में मेंशन किया मैंने। दैट एनर्जी मींस नीचे से ऊपर तक गया ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू गो दैट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एंड द एनर्जी फ्रॉम 0 टू यहां तक जो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज, इट इज ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया तो देख लो। थ्रेशोल्ड एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा फिर अभी बोलो। इसको बेस करके मेरे को थ्रेशोल्ड एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा, कोशिश करिए ना प्लीज। हाँ इधर देख लो बेटा, यस प्लीज मेरी बात सुनो। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहां से लिया मैंने, यहां से ले रहा, यहां तक ले रहा, यहां से यहां तक कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां से यहां तक एक्टिवेशन, यहां से यहां तक कौन है, एनर्जी पोसेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स ना। दैट्स व्हाई ग्राफ देखने के बाद समझेगा, मैं इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा बेटा यहाँ पे। दिस इज एक्टिवेशन, वेट 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 वेट, डोंट वरी, ऐसे बताया था मैंने। यहां से यहां तक मैं क्या बताया भाई साहब, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला मैंने। वेट, यहां से यहां तक हम किसको लिए, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये यहां से यहां तक कौन होगा, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स ना, रिएक्टेंट्स का एनर्जी। इसलिए हमने इसको फार्मूला बना रहे, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोसेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स, एनर्जी पोसेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स, that is called a threshold energy। एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग ये होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, होता होता। व्हाट इज द फॉर्मूला, अरेनियस इक्वेशन क्या है बताइए। व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए इंटू, अरे बहुत मोटा आ जा रहा, मेरे जैसा बारीक नहीं आ रही, हाँ यस, के इज इक्वल टू ए इंटू e to the power of minus EA by RT, EA by RT, this is the formula। चलो नेचुरल लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे, ln ln नेचुरल लॉगरिथम, ln नहीं वो ln अलग है, नेचुरल लॉगरिथम ln को अप्लाई करें तो ln k इज इक्वल टू, यस ये एक्सपोनेंशियल में चले जाएगा, डायरेक्ट वी कैन राइट दिस बाय अप्लाइंग नेचुरल लॉगरिथम EA by RT प्लस LNA, LNA। नेचुरल लॉगरिथम से इसको लॉग में कन्वर्ट करिए, लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, देन इट इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए बनेगा, ये लॉग ए है ना बेटा ये, हाँ माइनस साइन, इसका जो माइनस है यहाँ पे रेड कलर वाला ऊपर चेक कर लीजिए आप, ये वाला रेड साइन, नेगेटिव साइन, सेम दैट नेगेटिव साइन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी EA ही रहेगा बाई RT रहेगा, but this value is multiplied with 2.303 into RT। yes my dear student, this is the formula, relation between ये। हम अरेनियस इक्वेशन को और थोड़ा एक्सटेंड करके लिखेंगे तो यहां तक आएगा। अरे log k एंड 1/t, ये log k है ना रे भैया, ये t तो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, तो 1/t बनेगा, दोनों का आप लोग यहाँ पे ये लिखा लिए, ग्राफ लिखा लिए, यहाँ पे इंटरसेप्ट कौन होगा, स्लोप कौन होगा बोलो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया सो है। व्हाट इज इंटरसेप्ट, व्हाट इज स्लोप, प्लीज ऐसे नहीं करना चाहिए आप, सुनिए। when we are plotting the graph between log k and 1/t, this is log k on one axis and 1/t on another axis,
कैसा है दोनों का रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ऐसे आएगा, वी विल गेट ए नेगेटिव। हाँ यस, यहाँ पे स्लोप जो होगा, हियर स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, एंड इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे, इंटरसेप्ट इज log a और ln a। यस, ये जरूरी है आपको याद रखना। नहीं बेटा, आपको क्रिटिकल नहीं होता, मैं बोल रहा ना आपको, मैं एक 10 to 15 पॉइंट्स बोलता लास्ट चैप्टर होने के बाद केमिकल काइनेटिक्स के, उसके ऊपर 100% परफेक्ट रखो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। यस बेटा, नाउ हियर on increasing the temperature or decreasing the activation energy will result in the increase in rate of reaction। अरे रेट ऑफ रिएक्शन को कभी भी आप लोग बढ़ाएंगे, मेरी बात को ध्यान से अभी सुन लो। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बात को याद रख लीजिए। यस, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना रहा तो टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। यस यस, by increasing the temperature or by increasing the rate of reaction, activation energy decreases, activation energy decrease होगा। हाँ माय डियर स्टूडेंट, अभी जो लॉगरिथम के फॉर्म में हम लोगों ने अरहिनियस इक्वेशन को लिखे ना, कौन सा था लॉगरिथम के फॉर्म में? ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर। यस, मैं बोलता आपको, देखिए log k is equal to log a minus activation energy by 2.303 RT बनेगा, है ना? ऐसे बनेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं आपको, इसको 1 बोलिए तो ये 1 बनेगा, रिमेनिंग पैरामीटर्स कांस्टेंट। तो अभी log k2 को लीजिए, फिर अभी k1 को लिए ना हम लोगों ने, अभी log k2 को लीजिए, log k2 is equal to log a minus ea upon 2.303 RT2, RT2। क्या आदित्य क्लियर हुआ आपका? फर्स्ट ईयर 1 एंड 2 डिफरेंट ले रहा मैं। यस, डिवाइड दिस 2, इन दोनों को डिवाइड करिए। यस, log a गेट के आंसर उतना ही होगा ना, इसके अंदर से कॉमन ये निकालो। सो log a by b इज इक्वल टू क्या बनेगा? यस, कैसे भी करो, log a by b, यहाँ पे log k2 माइनस log k1, k1 is equal to ea by 2.303 r into 1 by t1 minus 1 by t2। ये सब डेरिवेशन नहीं चाहिए, फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे, आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पे log k2 by k1, किसी को डेरिवेशन चाहिए तो पर्सनली कॉल करो या नहीं तो मैसेज करिए, आई विल अरेंज 1 मोर क्लास। किसी को डेरिवेशन चाहिए, ea by 2.303 r अपॉन इंटू t2 माइनस t1 by t1 t2। दर्श रहे भाई, ये सब कहानी ना, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता क्या, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ।
हाँ, दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट। अरे एक पूछा गया था, सुनिए ना, एक ग्राफ ऐसे दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बोला गया, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। If the reactant activated complex and product, this is R and this is P. बोलो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? अरे भैया, जब प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता, यहाँ पे इनका हाईएस्ट है ना कंपेयर्ड टू द प्रोडक्ट्स, when potential energy decreases then it is considered as a exothermic reaction. It is considered as a exothermic reaction. और एक पॉइंट इसके रिलेटेड ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे देंगे, वेट or otherwise. If this is the reactant and this is the products are formed like this, yes, reactant and product, ये R बोलेंगे यहाँ पे हम लोग इनको प्रोडक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, मेरे को सब इंफॉर्मेशन आप लोग से चाहिए। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी। यस, इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पता होना है तो यही होना चाहिए। यस, वेरी गुड गौरव जिनके, ए करेक्ट बता दिया आप, ए करेक्ट बता दिया आप। एंड इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना, इट इज ए exo or endo? It is a exothermic reaction because potential energy of the products is decreased. Yes, if you have any doubt please consider करिए। A is the potential energy of reactants, yes, and here B is called activation energy, C is a delta H change in enthalpy, and D is threshold energy। सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझा दिया सारा। A is a potential energy of reactants, potential energy of reactants. B is a activation energy which is required to form a activated complex, which is required to form a activated complex. C is a change in enthalpy, delta H. D is threshold energy. If I am drawing this graph like this, if I am drawing this graph like this, अभी तो जितने बच्चे वो लोग तो आंसर करने की कोशिश करो भाई साहब, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। Yes, now we are going to discuss, this is A and this is B, change किया मैंने, B and this is C, and this is D। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन? Because here are the reactants, here are the products, यहाँ पे products, reactants and product, it is endothermic, it is endothermic because potential energy of the products decreases compared to reactants, sorry, products का potential energy ज्यादा है, reactants का less है, so that's why it is considered as endo by gaining the energy, heat energy, endothermic।
चलो ABCD कौन है बता दो। यस, A is ये पोटेंशियल एनर्जी, A is ये potential energy. It is a potential energy of reactants. D is a threshold energy, and C is a delta H, and B is activation energy. मेरा explanation finish है बेटा, किसी को doubt होगा तो बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, याद रख। यस, यस, यस। If activation energy of the reactants decreases, it means reaction proceeds with a fast rate. हाँ, रिएक्शन फास्ट होगा डियर स्टूडेंट। यस, आफ्टर दिस टेम्परेचर डिपेंडेंट के बाद में फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे आपको। सर व्हाट इज, क्या क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेम्परेचर रिलेटेड में। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, for every 10 degree rise of temperature, rate of reaction becomes double for every chemical reaction. Next one, there is a Arrhenius equation. What is Arrhenius equation? K is equal to A into e to the power exponential e to the power of minus EA by RT. If you are going to write in logarithmic condition, इन लॉगरिथम कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, log k is equal to log a minus EA by 2.303 RT। स्पेस की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा, समझ जाओ या नहीं। अच्छा हो, लिखना ही है क्या, ठीक है। EA by 2.303 RT। yes, then if two values are given, then what will be the relation? The relation is log k2 by k1 is equal to, log k2 by k1 is equal to EA by, एक्टिवेशन एनर्जी को ले रहे हैं ना हम लोगों ने, फाइनल कंक्लूजन EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2। yes, T1 T2 ये एक फार्मूला हो गया है ना। मैं आपको फाइनल कंक्लूजन अभी जो हम बोले थे अभी तक जितना डिस्कस किया उसके रिलेटेड, हाँ मैक्सिमम ये हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोनों का भी बता। एक रिएक्शन ऐसे हो, if one reaction is going on like this, yes, another is like this. Initially this one is a reactant, this one is product, this one is reactant, this one is product, this is potential energy का ऑर्डर है। yes, यहाँ पे क्या हो रहा, रिएक्टेंट्स का मोर है, प्रोडक्ट्स का लेस है। लेस है मीन्स कम हो गया, कम हो गया मीन्स बाहर चले गया, बाहर चले गया तो इट इज एक्सोथर्मिक। यहाँ पे रिएक्टेंट्स का इतना है, प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल इंक्रीजेस मीन्स उन्होंने एनर्जी को गेन किया, देन इट इज कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक। क्लियर हुआ या नहीं? यस, और एक एक बात मैंने बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, log k is equal to log a
माइनस EA बाई 2.303 RT लिए थे। और एक बार सुन लो, इफ वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन दिस log k को ले रहे एंड 1/t, then what will be the relation log a to का? We will get a straight line with a negative slope and the intercept which is here, it is intercept कौन बनता बोल के बोले यहाँ पे log a or ln a is the intercept and slope क्या है यहाँ पे, it is equal to EA by 2.303 R. This is intercept. स्लोप एंड इंटरसेप्ट दोनों के नेम्स नहीं लिखा, स्लोप का ही लिखा मैं, इंटरसेप्ट अपोजिट आपको पता चल जाएगा। हाँ, नेगेटिव साइन मेंशन करना है ना। यस, माइनस EA बाई 2.303 R स्लोप। ये क्वेश्चन बन सकता है अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, पॉसिबिलिटी है बेटा। यस माय डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम सब बता दे बेटा कल के रिलेटेड में। हाँ, कुछ बचा कुचा होगा तो पूछ लो मेरे को, और अदरवाइज वी विल डिस्कस अनदर थिंग। क्या था कर का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? 1 मिनट रुक जाओ, ये रीजॉइन कर लिए तो काम हो जाता। 2 मिनट और डिस्टर्ब होता, क्योंकि वो वाला जो कल डिस्कस किए थे ना हम लोगों ने इवनिंग सेशन में, वो सारा एक बार रिवीजन मार के और कौन से टॉपिक्स बचे एक बार चेक कर लें।